Hello everyone, this is Shashank Sekhar Singh from Target Academy with another lecture on casting. And in the previous lecture, we have studied about the gating methods. We introduced about the gating methods and its importance and what are the objectives of the gating methods that we have introduced in the previous lecture. So if you want to clear it before starting this lecture, please go through that one, or even the notes you will be able to understand, or you can revise it from there. Now, when we have discussed about the gating system and its objective, we can talk about like the categories of it, like how we can categorize the gating system. So the broad two categories are unpressurized gating system and pressurized gating system. This from this part generally it forms a part of the theory. Alright, from this question, from this topic, generally you will have some questions which are theoretical. So definitely you have to pay attention to it, and it might form 1 mark question in the GATE examination or any other examinations for that matter. So let's talk about unpressurized gating system. It means unpressurized means what? Like the flow is very smooth, it is not under pressure, and the velocity is also low, right? So what here it is, unpressurized gating system, I have done two parts. I've divided into two parts where I have compared the unpressurized with the pressurized gating system. So velocity of the liquid metal entering into the mold cavity is higher than initial velocity. All right, now see, when I'm talking about the velocity of the liquid metal, पहला बात यहाँ पे मुझे ये बात बता देना जरूरी है कि when it is entering the mold cavity, definitely the velocity should be high. Otherwise, if it takes a very large amount of time, it takes a very long time to reach the mold cavity or even fill the mold cavity, तब क्या होगा? ज़्यादा टाइम होगा तो मोल्टेन मेटल जो है वो क्या होगा? वो सॉलिडिफाई हो जाएगा ना. सो बिफोर इट फिल्स द एंटायर मोल्ड कैविटी, वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा. इसलिए थोड़ा वेलोसिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है. तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल एंटरिंग द मोल्ड कैविटी इज हायर देन इनिशियल वेलोसिटी. Alright. And when we talk about pressurized gating system, the velocity of the liquid metal entering the mold cavity is maximum because it is pressurized, it is under pressure. So since the liquid metal will be under pressure, therefore when it is pressure energy is converted into kinetic energy, then also at a high pressure energy converted into high kinetic energy, velocity will be very high. So velocity is maximum in case of pressurized gating system. Very important. Alright, so since velocity out here is high but not that appreciable, but in that case what happens? There would not be any possibility, no possibility of turbulence or erosion or splashing because velocity is nominal, it is not that much. Alright, now here there is a possibility of turbulence, right? There is a possibility of turbulence, splashing and erosion because the velocity is so high, or it is maximum velocity. So definitely it will cause some erosion or it might lead to some turbulence for the liquid metal. So it is very there is a possibility of this thing, like that there might be erosion of this molding material, or there might be wearing out of it, or there might be turbulence. All right, now here one thing, I am writing out this topic as a possibility of air aspiration effect. ये जो है इसको मैं समझाऊंगा आपको, but this topic, that is air aspiration effect, I will explain in the details in the next lecture. But as of now I can say that air aspiration I have already explained in the previous lecture also, just about this point, that air aspiration effect is that effect or that phenomenon in which the liquid metal absorbs atmospheric air and the atmospheric air is trapped within the liquid metal, and which forms what? It forms air bubbles inside it. So when the casting solidifies, you will have air bubbles inside the final product, which will lead to defective product. So possibility of air aspiration effect kahan pe hai? Unpressurized mein, because there is a reason for everything. So because the velocity is not that maximum, velocity is not that high, it is taking a long time from coming down from pouring basin to the sprue and then coming to the mold cavity, then it is taking a longer time. So since it is taking a longer time, it will have enough time to interact with the air. So in that case there might be absorption of air in the liquid metal, and there is a non possibility of air aspiration here, no possibility
of air aspiration because the flow is very fast, the flow velocity is maximum, so there won't be any like if chances, no probability of air aspiration here. Now I have compared these two things are very important. These two forms generally a part of what MCQs. These two, like they will ask you that the, or you can get the match the following also. All right, so ratio of area, this is A means cross sectional area of everything, and S means sprue, R means runner, and G means gate. Gate is that portion through which the liquid metal will enter the mold cavity. Sprue is the vertical passage, runner is the horizontal passage. ऐसे करके बनाते हैं ना, ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग का मोल्ड कैविटी मिलता है ऐसे करके. तो ये वाला पार्ट हो गया गेट, ये हो गया एरिया ऑफ द स्प्रू रनर, और ये हम लोग का एरिया ऑफ द स्प्रू. ठीक है. नाउ इन दिस केस when we compare that from when the liquid metal is moving from sprue to runner to gate, the cross sectional area is increasing. See, runner becomes 4 times the sprue and gate is also 4 times the sprue, and runner and gate are same. alright, ऐसा होता है. तो इन दैट ये मैंने जस्ट ऐसे बनाया है, लेकिन ऐसा डायग्राम नहीं होगा. इसमें क्या है कि गेट और रनर का जो एरिया है दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द स्प्रू, एंड सिंस ऐसे करके फैल रहा है तो वेलोसिटी भी थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, नोजल जैसा इफेक्ट नहीं आएगा वहाँ पे. हेयर स्प्रू इज लार्जर देन द गेट एंड रनर इज ऑल्सो लार्जर देन द गेट. तो स्प्रू एंड रनर आर ट्वाइस द व्हाट साइज ऑफ द गेट, यानी कि गेट का जो क्रॉस सेक्शन है वो सबसे छोटा है ऐसे करके, तो नोजल जैसा इफेक्ट आएगा, इसलिए वेलोसिटी विल बी maximum in this case. So these two parameters you have to remember, and this is very important from the point of view of MCQs. ये आपको ध्यान रखना होगा. Alright. So now when we are coming down to discussion about, this was the broad categories of gating system. Now we have to talk about like the orientation of the gating system. When we are talking about types of gating system, in this case we are talking about orientation. This is totally about orientation and how the gate will be designed, and how the gate will be like, how the gate will be attached to the mold cavity, whether it is from the top of the mold cavity or it is from the bottom of the mold cavity, that we have to see. And on the basis of that we have two different types of orientation, and these two types are top gate. One is top gate and the other is known as bottom gate. So let's see, let's start with the top gate, and this is very very important for gate numericals. Number of questions have come in the gate numericals. You have to pay attention to this, especially this part. Like numericals कहीं से आएगा gate में, तो definitely that will be this portion, or there are few more topics from which the numericals can be framed in the gate examination. So let's start with the top gate. And what is top gate? When we talk about like this top gating system, ये नाम क्यों हुआ, टॉप गेट क्यों नाम आया? यानी कि गेट का अगर पोजीशन टॉप में है, टॉप मतलब किसका टॉप? इट इज एट द टॉप ऑफ द मोल्ड कैविटी. इट मीन्स इफ द पोजीशन ऑफ द गेट इज एट द टॉप ऑफ, किसका टॉप पे है? मोल्ड कैविटी का टॉप पे, तब वैसे गेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे? This type of gating system is known as top gate. So gate is the entry point. Definitely it is a point from where the molten metal will enter the mold cavity. So if that entry point is placed on the top of the mold cavity, then this will be known as top gate. Very important. Now there are two ways the top gate can be considered. आपको दो तरीका देखना होगा कि कैसे कैसे top gate लगा सकते हैं, either with runner or without runner. ठीक है, देखो ये विदाउट रनर है. यहाँ पे क्या हुआ? पोरिंग बेसिन, स्प्रू, डाउन स्प्रू भी बोलते हैं इसको अगर हम लोग स्प्रू बोलें, या फिर अगर हम लोग सिर्फ इसको डाउन स्प्रू भी बोलते हैं तो भी चलेगा. बहुत जगह में डाउन स्प्रू के हिसाब से आया है नाम, सो डू नॉट हैव टू कंफ्यूज. ऑलराइट, यहाँ डाउन स्प्रू भी बोल सकते हैं, डाउन. सो पोरिंग बेसिन, स्प्रू, एंड दिस इज द मोल्ड कैविटी. वही पोरिंग बेसिन, स्प्रू विथ हॉरिजॉन्टल रनर, एंड दिस इज द मोल्ड कैविटी फ्रॉम वेयर इन विच, और इसमें कहीं कहीं यहाँ रनर लगा, यहाँ राइजर लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे राइजर लगा हुआ रहेगा ऐसे करके. ठीक है. नाउ लेट्स सी, देयर आर फ्यू थिंग्स आई हैव मेंशन्ड आउट हियर. मोल्टेन मेटल इज फिल्ड अप टू दिस पॉइंट, दिख रहा होगा, यहाँ भी वही चीज दिख रहा है. दोनों को मैं साइड वाइज बनाया है मैंने. सो HC दैट इज हेयर, that is the height of metal
हाइट ऑफ मेटल इन द पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन में कितना हाइट है लिक्विड मेटल वो दिखा रहा है HC से, देखो यहाँ पे वही चीज़ है HC, ठीक है। फिर HS इज द हाइट ऑफ द स्प्रू, दिस इज HS विच इज द हाइट ऑफ द स्प्रू, सी स्प्रू जितना हाइट का होगा उसका हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हाइट भी बोल सकते हैं, इसको लेंथ ऑफ स्प्रू भी बोला जाता है, क्वेश्चंस में कभी कभी लेंथ के हिसाब से भी देगा। तो स्प्रू बिंग द व्हाट, being the vertical passage for the liquid metal, we will consider either we can say it as height or we can say it as the length of the down sprue. So ये दोनों को मिला के इसको हम लोग टोटल हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल हाइट, ठीक है, which is equal to height of liquid metal in the pouring basin plus height of the down sprue, HC plus HS, alright। अब देखो ये जो गेट है, this is the gate through which the liquid metal will enter the mold cavity, है ना। तो liquid metal will enter the mold cavity through this opening and this opening is known as gate. Now this gate is placed on the top of the mold cavity, ये रहा mold cavity इसके top पे है, तो क्या हो गया ये top gate। यहाँ भी mold cavity के एकदम ऊपर लगा हुआ है, that is why it is known as, क्या होगा, this is known as top gate and the cross section area of the gate is AG, very important to note, this is AG is the cross sectional area of the gate। तो these are the few parameters जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सच पैरामीटर्स विल बी मेंशनड इन द गेट न्यूमेरिकल, आपको कुछ नाम से दिया हुआ रहेगा, लाइक हाइट ऑफ द टोटल हाइट दिया हुआ है या फिर लेंथ ऑफ द डाउन स्प्रू इज गिवन, सो इफ लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ द डाउन स्प्रू इज गिवन देन इट इज HS, ऐसे करके आपको समझना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो अब मोल्ड कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द पोरिंग बेसिन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्प्रू, दोनों में बात कर लिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द मोल्ड कैविटी। द मोल्ड कैविटी हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A, इसको A बोलो या AM भी लिख के आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, इसको AM भी ऐसे करके मेंशन हो सकता है। ये H है, दैट इज द हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी, ठीक है। तो ये कुछ आपको मोल्ड कैविटी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये इधर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर क्यूबॉइड फॉर्म में हो सकता है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दिया हुआ है ना। तो ये हाइट H हो गया और नीचे वाला पार्ट हो गया A, तो एरिया इनटू हाइट, दिस इज द व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी, यानी कि इस मोल्ड कैविटी में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेटल आएगा, A इंटू H, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी शेप, इट कैन बी सर्कुलर ऑल्सो, सर्कुलर होगा तो ये सिलेंड्रिकल बन जाएगा, है ना, क्लियर, एनी डाउट इन दिस। देन द हाइट ऑफ द H इज द हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी, इसको हम लोग HM से भी बोल सकते हैं, क्लियर, एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मोल्ड कैविटी, so area into height will become what, the volume of the mold cavity, and this will be the capacity of the liquid metal, like capacity of the cavity is this much, so this much amount of volume of what, this much amount of volume can be accommodated in the mold cavity, which volume, the volume of the liquid metal can be accommodated, so this is done। इतना आपको जो पैरामीटर्स क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्या क्या है। ना हम लोग का एम क्या है, न्यूमेरिकल्स किस पे बेस पे आएगा, है ना। तो एम जो है वो हम लोग को निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय दिस गेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फिल द मोल्ड कैविटी कंप्लीटली। सो टाइम ऑफ फिलिंग जो होगा उसको हम लोग TF से मेंशन करते हैं, TF, जनरली हम लोग सेकेंड्स में ही निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग अप्रोच कैसे लगाएंगे, ये एम है हम लोग का निकालने का, तो वी विल हैव टू टेक सर्टेन अप्रोच, लाइक हम लोग कैसे करेंगे, तो वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट। यहाँ पे देखो ये जो स्प्रू आया और यहाँ पे जो गेट है, गेट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है AG एंड VG इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू गेट, ऐसे थ्रू से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ऐसा पढ़ा है। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ वेलोसिटी हो रहा है तो उसको अगर हम लोग ऐसे करके देते हैं, मेंशन करते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो डिस्चार्ज कितना होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, एरिया इनटू वॉल्यूम, वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, सो एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, विल गेट मीटर क्यूब पर सेकंड एज द डिस्चार्ज और द वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, हाउ मच वॉल्यूम इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
सो वॉल्यूम फ्लो रेट Q इज इक्वल टू हाउ मच, Ag इंटू Vg, है ना, यहाँ से होगा। तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों ने जानना है, इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन आएगा, देखो, ठीक है। लेट द टाइम ऑफ फिलिंग बी TF, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि टाइम ऑफ फिलिंग जो होता है दैट इज टेकन एज TF एंड जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच लगाएंगे, लेट्स सी। तो हम लोगों के पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइक मोल्ड कैविटी, आपको ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है कि मोल्ड कैविटी जो है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड हाइट H है। तो वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी कितना है, एरिया इंटू H, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मोल्ड इंटू H, ऐसे है। सो हम लोग ये इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे इन गेट से ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे स्प्रू लगा हुआ है, ऐसे करके फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, देखते हैं, ये जो वैल्यू आएगा दैट इज Vg एंड दिस इज Ag। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है Q, एक पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है Q। एंड वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अगर ये पूरा वॉल्यूम को भरने में, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम को भरने में जितना टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और उसको हम लोग को भरने में 10 सेकेंड लगा। हाउ मच, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड इट वाज फिल्ड कंप्लीटली इन 10 सेकेंड्स। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो जाएगा, दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वाज फिल्ड इन दिस टाइम, तो वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसे लिख कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, जितना वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी है उसको भरने में टाइम लगा TF, which is where TF is the time of filling, which will give us the volume flow rate, and volume flow rate is given by Ag into Vg। क्लियर है, where Ag is the cross sectional area of the gate, ये वाला, and Vg is the volume velocity of the flow of liquid metal through this gate। काम खत्म। Now Vm we can write down, Vm is equal to Ag into Vg, Ag यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ag into Vg into TF, therefore TF will be equal to Vm by, ये टोटल नीचे आ जाएगा, Vm by Ag into Vg। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो इसका डायमेंशन सेकंड आएगा अपने आप। वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर क्यूब, Ag दैट इज द एरिया ऑफ द गेट दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड Vg दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी, Vg is the velocity of the liquid metal through the gate and it is meter per second। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर दैट इज मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा चला गया, सेकंड विल गो अप एंड सेकंड इज व्हाट वी हैव गॉट इज इन टाइम, सेकंड इज इन टाइम। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ रहता है, जनरली इन द क्वेश्चन ऑफ द गेट वी आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ऑन एरिया ऑफ द गेट हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ये हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ये हम लोग को दिया हुआ रहेगा, और हम लोग को निकालना है ये। एक्चुअली में फाइनली हम लोग का एम है निकालना टाइम ऑफ फिलिंग, बट अभी तक हमारे पास Vg का वैल्यू नहीं है, वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द गेट, नहीं है। तो Vm विल बी गिवन, Ag विल बी गिवन, बट हम लोग को Vg तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ये Vg निकालेंगे कैसे, है ना। तो सिंस द लिक्विड मेटल इज फ्लोइंग थ्रू वेरियस क्रॉस सेक्शंस और वेरियस पैसेजेस, तो हम लोग एक चीज़ हम लोग पढ़ते थे जो फ्लूइड डायनेमिक्स में नाम था, जिसको हम लोग बोलते थे बर्नौलीज इक्वेशन। हम लोगों ने पढ़ा है ना बर्नौलीज इक्वेशन। तो वी हैव स्टडीड अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स एंड दिस विल अप्लाई इन दिस केस ऑफ टॉप गेट, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो अगर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कोई दो पॉइंट के बीच में लगाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देना जरूरी है, दैट्स व्हेन यू कैन अप्लाई। तो हम लोग का बर्नौलीज इक्वेशन जनरली फॉर रियल फ्लूइड इज जनरली गिवन बाय P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 एंड इट इज अकम्पनीड बाय हेड लॉस। तो ये हेड के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है। दिस इज द पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1, पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 2, दिस इज द डायनामिक हेड एट पॉइंट 1, दिस इज द डायनामिक हेड एट पॉइंट 2। इसको स्टैटिक हेड भी बोलते हैं, P वाले को पार्ट को, और V वाले पार्ट को डायनामिक बोलते हैं।
Z1 इज़ द एलिवेशन हाइट, कि कितना हाइट पे है वहाँ पे फ्रॉम द डेटम, और Z2 इज़ द हाइट ऑफ द सेक्शन 2 फ्रॉम द डेटम। तो दो सेक्शंस पे लगा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बीच में हम लोग लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो उसमें ये हो जाता है 0 इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो जनरली हम लोग जब कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हेड लॉस को 0 ही मानते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम लोग का हेड लॉस के बारे में कुछ कंडीशंस दिया हुआ नहीं रहता है। तो डेफिनेटली विल अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द गेटिंग सिस्टम एज दिस वन। इसको लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो तो ये किसके किसके बीच में लगाएंगे, तो दिस इज समथिंग वी कैन, देखो टॉप गेट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग आउट, हम लोग का एम है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फिलिंग। तो टाइम ऑफ फिलिंग निकालने के लिए हम लोग के पास जो रिलेशन आया था विच इज इक्वल टू वी एम बाई ए जी इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द गेट, कितना था। तो वी एम एंड ए जी हम लोग को मालूम है ना, बट वी जी क्या है ये हम लोग को नहीं पता है। तो वी जी हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम लोग के पास ऐसा है, and this is a mold cavity, mold cavity has the area A and height h, तो volume of the mold cavity will be into A into h, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखो, ये इसको 0.1 मान रहे हैं हम लोग, और ये पॉइंट जहाँ पे हम लोग का ज़रूरी है, क्या निकालना ज़रूरी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v2 निकालना ज़रूरी है, जिसको हम लोग vg बोल रहे हैं, है ना। तो दिस इज v2 जो है वो हम लोग का vg के बराबर होगा, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड मेटल थ्रू द गेट, क्लियर। एंड हम लोग के पास यहाँ पे ag है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास v2 है, p2 है, और अगर हम लोग इसी को डेटम मान लें, इसी को डेटम मान लेते हैं तो हम लोग का z2 देखते हैं क्या होगा। फिर एट दिस पॉइंट वी विल हैव p1, वी विल हैव v1, वी विल हैव z1, क्योंकि तीन चीज़ चाहिए, p1, v1 एंड z1, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बिटवीन 1 एंड 2 अगर हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग को देखो क्या होता है कि p1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस z1 इज इक्वल टू p2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस z2। तो हम लोग को देखना है, पहला बात तो यहाँ देखना है कि हेड लॉस तो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रॉम द डेटम Z1 कितना हाइट पे है, दिस इज द सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 इज एट ए हाइट ऑफ हाउ मच, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि ये HC है, ये HS है, तो दोनों मिला के हो जाता है HT। तो डेफिनेटली Z1 विल बी इक्वल टू HT, राइट। प्रेशर 1, सिंस दिस इज पोरिंग बेसिन, दिस इज 1 इज ओपन टू एटमोसफेयर, इसके बाहर क्या है, एटमोसफेयर है। सो P1 इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो गेज प्रेशर हम लोग लेते हैं जनरली, सो P1 विल बी इक्वल टू 0, तो P1 वाला पार्ट हो जाएगा 0। नाउ बच गया V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस HT, और P2 जो है देखो, इसके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये मोल्ड कैविटी के साथ में इधर में क्या लगा हुआ है, वी हैव इंस्टॉल्ड द राइजर, तो राइजर भी इज ओपन टू व्हाट, एटमोसफेयर। तो ये जब तक खाली है, ये मोल्ड कैविटी अभी भरना शुरू नहीं हुआ है और ये खाली है, तो इन दैट केस द एंटायर एटमोसफेयर इन दिस केस विल बी व्हाट, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा। सो P2 विल ऑल्सो बी एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो गेज प्रेशर के टर्म्स में ये भी 0। एंड नाउ V2 वी हैव एज Vg, तो हम लोग V2 के टर्म्स में लिख रहे हैं, लेटर ऑन विल रिप्लेस विथ, एंड Z2 सिंस दिस इज द डेटम, तो डेटम से Z2 कितना है, 0, देयर इज नो हाइट ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम द डेटम, काम खत्म। नाउ H2 विल बी इक्वल, HT विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। ना यहाँ पे देखना है, ये हम लोग का एरिया, ये तो एरिया A1 होगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पोरिंग बेसिन A1, एंड दिस इज A2 विच इज द एरिया ऑफ द गेट AG। तो इसको हम लोग अगर A2 लेते हैं फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, फ्लो तो वही है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा तो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो V1 क्या लिखेंगे, A2 बाई A1, तो A2 बाई A1 इंटू V2। नाउ सिंस जो A2 है ना, एरिया ऑफ द गेट इज वेरी वेरी लेस देन द एरिया ऑफ द पोरिंग बेसिन, वेरी लेस, यानी कि A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, इन दैट केस देयरफॉर ये बहुत छोटा हो जाएगा, A2 इज वेरी वेरी लेस, तो ये रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा, देयरफॉर V1 विल बी वेरी वेरी लेस देन V2, यानी कि इन कंपैरिजन टू V2 V1 विल बी नेग्लिजिबल, यानी कि हम लोग यहाँ पे V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और भी स्क्वायर टर्म्स में और नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो वी विल हैव V2 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू HT, है ना. तो V2 विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2G इंटू HT हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 2GHT एंड दिस V2 इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल थ्रू द गेट. ये हुआ तरीका डिराइव करने का. तो लेट्स सी, हम लोगों ने कहा है टू फाइंड Vg, वी नो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, हमने अभी थोड़ा देर पहले किया इसमें रफ पेज में. सो V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू V2, A2 बाई A1 इंटू V2. मैंने ये पूरा आपके लिए नोट्स में बना के रखा है जो आपको बहुत काम आएगा. तो देयरफॉर V1 is very very less than V2 and negligible when compared to V2. So this notes will be definitely will be provided to in the form of PDF. So it will be very very helpful for you once you watch this video or you keep this notes with you. Definitely it will help you till the entire lifetime. It will help you, and anytime if you want to prepare for GATE, definitely this notes will be enough because it is a compilation from different sources, and whatever I have studied during my course, during my time, I have completely put it down here. And there is nothing, absolutely nothing which will come outside from this set of notes. All right, so let's move ahead. तो हम लोग को V2 मैंने जो है that is the velocity, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 ATM है तो गेज प्रेशर में टर्म्स में वो 0 होगा. तो इक्वेशन रिडक्शन करके मैंने आपके लिए बता दिया कि यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी एट द गेट जो है लिक्विड मेटल थ्रू द गेट इज गिवन बाय दिस वन. ये मैंने आपको अभी डिराइव कर दिया. तो पहला बात, अगर आप डेरिवेशन ध्यान में रखते हो, इफ यू नो द डेरिवेशन हाउ टू डू इट, इफ यू नो हाउ टू डू इट, then there is no like there can be no challenge at all. But if you want to remember only the formula, you can do it. If your memory is good, you can do it. But if you keep the derivation in mind, or if you know it, like you do not have to memorize the derivation, you just have to know the mechanism how we are deriving. So अगर आप वैसा कर रहे हो, आपको derivation याद है, तो definitely there is no stopping and you will definitely achieve like success. Alright, so यहाँ पे हम लोग का TF ये हुआ, आपको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता अगर डेरिवेशन याद है तो. देन TF we have derived already this one, this part, that is the volume of the mold cavity divided by the area of the gate into the velocity of the liquid metal through the gate, and velocity of liquid metal through the gate is equal to this much, and volume of the mold cavity will be is given as A into H. कभी कभी आपको ये इसका वैल्यू डायरेक्ट दे देगा या कभी कभी ऐसे फॉर्म में देगा, एरिया इंटू हाइट के टर्म में देगा. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट का कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है जो मैंने आपके लिए कर रखा है और मैं आपको करके क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा. ऑलराइट, लेट्स सी. कुछ नोट जरूरी है यहाँ पे नोट करना आपको गेट के लिए कि अगर अब आपको कोई चीज़ का नहीं बताता है, लाइक इफ देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग मेंशन्ड अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ गेटिंग सिस्टम is there in the question that will appear in the gate examination, by default you will have to take top gate system. ठीक है, if nothing is mentioned about the type of gating system, assume it to be top gate by default. आपको कुछ दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड टॉप गेट कहाँ यूज होता है ये चीज़ मैंने आपको लिख दिया. ये टॉप गेट इज यूज फॉर फेरस मेटल यानी कि हैवी मेटल होगा, एंड फॉर लार्ज साइज कास्टिंग, बड़े कास्टिंग में टॉप गेट यूज किया जाता है. एंड दिस इज जनरली हेल्पफुल फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ऑलराइट, फॉर एमसीक्यूज. ये मैंने आपको नोट में करके लिख दिया है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ द अदर टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम इज नोन एज बॉटम गेट. बॉटम गेट का नाम से समझ में आ रहा होगा कि लाइक मोल्ड कैविटी के बिलो लगा हुआ रहता है. एक बात आपको ध्यान देना है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉटम गेट, देन बॉटम गेट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है. बॉटम गेट कुछ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ मोल्ड कैविटी और ऐसे आके राइजर होगा तो ये फिलअप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. नो, नॉट एट ऑल. जो होगा हॉरिजॉन्टल रनर से आएगा, देन द मोल्ड कैविटी को एंट्री करेगा वो भी नीचे से, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड कैविटी कुछ ऐसा लगा हुआ रहेगा. एंड दिस इज द मोल्ड कैविटी एंड दिस विल बी द राइजर, होगा ना. तो दिस इज द गेट थ्रू विच द लिक्विड मेटल विल एंटर द मोल्ड कैविटी. ठीक है, तो बॉटम गेट के बारे में ध्यान देना. तो द गेट दैट इज द एंट्री टू द मोल्ड कैविटी व्हेन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर दिया ये पूरा. दिस इज पोरिंग बेसिन,
pouring basin में इतना liquid metal है which is equal to HC, that is the height of the liquid metal in the pouring basin. Then HS, that is the vertical passage, that is known as down sprue. So down sprue, the height of the down sprue is HS. HC plus HS मिलके बनता है HT. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. And area of the gate is given as, cross sectional area of the gate is given as AG. और ये रहा हम लोग का मोल्ड कैविटी जिसका एरिया दिया हुआ है AM एंड दिस इज द राइजर. राइट, ऐसे करके राइजर बनाया हुआ है where AM is the cross sectional area of the mold cavity and HM is the height of the mold cavity, है ना. AM into HM दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम मालूम चल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी इज इक्वल टू AM into HM. ठीक है, तो HC हम लोग समझा दिया कि लाइक इट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द मोल्ड कैविटी. HS इज द हाइट ऑफ द डाउन स्प्रू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टोटल HT विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, HT जो है दैट विल बी इक्वल टू HS प्लस HC. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द मोल्ड कैविटी एट एनी इंस्टेंट. नाउ देखो यहाँ से लिक्विड मेटल आएगा, इट विल स्टार्ट फिलिंग अप. फिल अप करते जाओगे तो ये धीरे धीरे H बढ़ते जाएगा, H इंक्रीज होते जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट, मैंने बोल रहा हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग का हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड कैविटी हो गया है H. दिस इज द H, दैट इज इंस्टेंटेनियस हाइट बोलेंगे इसको इंस्टेंटेनियस हाइट, क्योंकि ये हाइट जो है टाइम के साथ चेंज होगा. इंस्टेंटेनियस हाइट, and this height is called instantaneous because with every instant of time this is going to change. ये चेंज होने वाला है. क्लियर है, ये हाइट जो है ये वेरिएबल है. नाउ दिस H इज वेरिएबल, ये ध्यान में रखना है बिकॉज मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम ये वेरिएबल है. क्यों है, ये कैसे होगा आगे, ये मैं आगे आपको फर्दर कोर्स ऑफ द लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ. एंड H इज द variable. This H, that is the height of the liquid metal in the mold cavity, with every instant of time it is changing. यानी कि यहाँ पे H के साथ एक और चीज वेरिएबल है, that is time. तो टाइम चेंज होगा तो H भी चेंज होगा. तो टाइम एंड H आर वेरिएबल्स राइट नाउ. जहाँ पे हम लोग के पास HM, AM, HS, HT, AG एवरीथिंग आर कांस्टेंट. ठीक है, तो AM इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड हाइट इज द मोल्ड. HM ये तो आपको पता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी. हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. अब आगे ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बॉटम गेट वाला पार्ट थोड़ा क्रिटिकल है और इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो टाइम ऑफ फिलिंग जो होता है हम लोग निकालने के लिए हम लोग का भी यहाँ भी एम है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फिलिंग द मोल्ड कैविटी. या गेटिंग सिस्टम का ही मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को टाइम ऑफ फिलिंग निकालना है कि कितने टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू फिल द एंटायर मोल्ड कैविटी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. हम लोग पॉइंट 1 ले रहे हैं ऑन द पोरिंग बेसिन एंड पॉइंट 2 वी आर कंसिडरिंग ऑन द गेट. ठीक है, तो 1 और 2 हम लोग को 2 डिफरेंट पॉइंट्स मिल गया जिसके बीच में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वी विल अप्लाई नथिंग बट दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन अगेन बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t के बाद लगा रहे हैं व्हेन द लिक्विड मेटल इन द मोल्ड कैविटी वाज एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम. हाइट h तक पहुंच चुका है, तब हम लोग 1 और 2 के बीच में लगा रहे हैं. ठीक है, इनिशियल में नहीं लगा रहे हैं, जस्ट थोड़ा देर बाद, एक कुछ टाइम के बाद हम लोग लगा रहे हैं. एंड दैट विल जस्ट लीड अस टू द एम. हम लोग का क्या एम है करना, दैट इज टाइम ऑफ फिलिंग निकालना. सो लेट अस अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2. सो पॉइंट 1 और 2 के बीच में हम लोग लगा रहे हैं. ठीक है, तो वही है P1 by rho g plus V1. दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज पीजोमेट्रिक हेड, डायनेमिक हेड एंड एलिवेशन हेड. Again same thing out here for the section 2 and head loss is considered as 0 because हम लोग इसको आइडियल फ्लो मानते हैं. तो P1 तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है भाई, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट इट इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हैंस P गेज विल बी व्हाट, 0. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप कोई भी गेज या कोई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हो तो उसका नीडल आपको कहाँ दिखाई देगा, आपका नीडल आपको वहाँ पे उस समय आपको 0 पे दिखाई देगा ऐसे करके, क्योंकि दैट इज नॉट मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is only measuring the atmospheric pressure relative to the atmospheric pressure. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो नीडल विल स्टार्ट टू राइज होगा, लेकिन वो गेज प्रेशर है, इट मीन्स लाइक
if it is placed in the atmosphere, definitely that pressure will be 0. तो हम लोग का P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो गया 0. एंड P2 इन दिस केस ध्यान रखना है, P2 इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मेटल इतना बढ़ चुका है. यहाँ एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है. अब यहाँ पे अब लिक्विड मेटल आ गया. नाउ सिंस लिक्विड मेटल हैज़ अराइव्ड हेयर और लिक्विड मेटल हैज़ फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ h, तो लिक्विड मेटल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ पे एग्जिट करना. कितना हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़े थे ना, P2 इज इक्वल टू रो GH हो जाएगा कि नहीं होगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. तो h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. कौन सा लिक्विड कॉलम? दैट इज द लिक्विड मेटल कॉलम. तो इतना हाइट बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली एट दिस पॉइंट हाउ मच विल बी द प्रेशर? इट विल बी P2 is equal to rho GH. This is the concept from hydrostatic pressure and pressure and its measurement. ठीक है, तो P2 by rho G हम लोग जो H लिखते हैं. तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे, P1 का वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं. देखो ये रहा V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, Z1 from this is the datum. तो Z1 is the elevation of the point 1 section 1 we have considered. तो Z1 is equal to कितना हो जाएगा? टोटल हाइट HC plus HS. ये तो क्लियर है आपको. तो HT हम लोगों ने मेंशन कर चुका है, HC plus HS. एनी डाउट? अब क्या है हमारे पास, P1 तो 0 हो गया, P2 हमारे पास आ गया है H. देख लो, P2 by rho G is equal to H. And V2 square, that is the V2 is nothing but the velocity of flow through the gate, that is V2, which is also known as VG. और यहाँ पे हम लोग को V1 square by 2. तो यहाँ पे हम लोग फिर से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे between point 1 and 2, where 2 is the gate, 1 is the pouring basin, where A1 V1 is equal to A2 V2. Now since area A1, this area A1, cross sectional area A1 is very high or very larger than the cross sectional area of the gate, so therefore the velocity of this layer or this section, at this section velocity will be very less when compared to the velocity at the gate, velocity of flow in the gate. तो V2 के कंपेरिजन में V1 नेग्लिजिबल है, उसको हटा देंगे, जस्ट लाइक द लास्ट गेटिंग सिस्टम, इन द टॉप गेटिंग सिस्टम में जैसा किया था. तो यहाँ पे H मिला, यहाँ पे HT मिला, ध्यान देना. अब देखो HT और ये V1 नेग्लिजिबल, HT माइनस H, H इधर आ जाएगा तो वी विल हैव HT माइनस H एंड दिस इज V2 स्क्वायर बाय 2G. तो V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2G इंटू, ये होगा 2G मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एंड सिंस इट इज स्क्वायर, इफ यू रिमूव द स्क्वायर विल गेट ए स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड, and this is equal to 2G HT minus H, which is the velocity of liquid metal flow through the gate. Now ध्यान देखो यहाँ पे एक चीज़. पहला बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मैंने ऐसे पॉइंट्स बता दिए आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड कैविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द गेट विल बी डिक्रीजिंग. देखो हाइट का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे समथिंग माइनस HT इज कांस्टेंट, HT माइनस समथिंग, यहाँ पे HT से कुछ हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ H. H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द लिक्विड कॉलम. तो ये हाइट, ये जो लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड मेटल है, ये तो धीरे धीरे आपको इंक्रीज होते जाएगा अप टिल द पॉइंट व्हेन इट कंप्लीटली फिल्स द मोल्ड कैविटी. तो इफ हाइट इज इंक्रीजिंग then the velocity of flow of liquid metal through the gate decrease होगा, क्योंकि we are subtracting H. तो इसका वैल्यू कम होते जाएगा ना, H का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका टोटल वैल्यू कम होते जाएगा. when this is reducing, this entire value will reduce and hence H when increases the velocity of flow through the gate increases. और ये instant velocity ले रहे हैं हम लोग. At any point when the liquid metal, the height of the liquid metal in the mold cavity is H, then the velocity at that particular point of time is this much. ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है. तो since the parameters are instantaneous, तो हम लोग को अब इंस्टेंट इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल हो रहा है. इस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ टाइम टिल द एंड ऑफ टाइम एवरीथिंग इज वेरिंग. आपका H वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है एंड टाइम इज वेरिंग, ठीक है. तो उस केस में हम लोग का जब वेरिएबल्स आ जाता है then definitely we can apply integration. तो इंटीग्रेशन से ही बॉटम गेट में हम लोग निकालेंगे क्या, we will have to find out the velocity of time of filling the mold cavity. Let's see. तो यहाँ से हम लोग को ये
यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था दिस वाज द एरिया ऑफ द गेट वाज AG एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू दिस गेट वाज VG। क्लियर। और ये हम लोग का मोल्ड कैविटी है एंड दिस मोल्ड कैविटी हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ AM एंड द टोटल हाइट इज हाउ मच, टोटल हाइट हम लोग को मिल रहा है h, है ना। AM इंटू H हम लोग को मिल रहा है, दिस इज द थिंग, राइट। अब देखते हैं इन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम volume of or the height of the liquid metal in the mold cavity was h and after certain time dt, थोड़ा टाइम बाद वो हाइट कितना इंक्रीज हो जा रहा है dh, after certain time dt the height increases is dh, more metal flows into it, यही है। तो after small time dt let the increase in the height will be dh। क्लियर है। तो वही हम लोग अब क्या करेंगे, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हम लोग को ये मिल रहा है, ठीक है। एंड स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, इतना इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है ना, इतना पार्ट, तो AM तो है ही, तो ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। तो ये तो AM है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मोल्ड एंड दिस इज द हाइट DH। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है या स्मॉल वॉल्यूम फिलिंग कितना हो रहा है इज इक्वल टू AM इंटू DH होगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा टोटल टाइम के लिए, देन डेफिनेटली विल गेट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि जितना वॉल्यूम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम filled in time t dt is equal to what, volume flow rate, and which is volume flow rate is equal to what, Ag into Vg। जितना वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मोल्ड कैविटी है वॉल्यूम एंड इट इज फिल्ड इन 10 सेकेंड्स, देन आवर फ्लो रेट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है। तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी व्हेन फिल्ड इन टोटल टाइम t इट गिव्स अस q एंड q इज नथिंग बट एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया कहाँ से, फ्लो कहाँ से हो रहा है, गेट से, एंड द वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द गेट। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द गेट हम लोगों ने क्या निकाला था, पिछला थोड़ा देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि Vg इज इक्वल टू, क्या निकाला था, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Vg का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था रूट अंडर 2g ht माइनस h। मैंने पहले भी बताया है h का वैल्यू इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, दिस इज व्हाट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, ऑलराइट। तो देखो, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल रहा है, क्लियर है। नाउ एरिया, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू AM इंटू DH, मैंने पहले बता दिया एरा, डिवाइडेड बाई AG इंटू VG, AG इंटू VG एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया एंड दिस इज dt इज गॉन है। सो dt इज इक्वल टू AM, आपका कांस्टेंट एरिया ऑफ मोल्ड कैविटी इज कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ गेट इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, ऑलराइट। एंड DH इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइट इंक्रीज इन हाइट वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड मेटल थ्रू द गेट इज गिवन एज रूट अंडर 2g ht माइनस h। ये आपको पहले हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, क्लियर है। सो एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, सिंस इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू h, तो हम लोग का यहाँ पे एक ही वेरिएबल है h एंड ht 2g ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। तो रूट अंडर 2g जो है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 2g इंटू रूट अंडर बाकी का पार्ट दैट इज ht माइनस h लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 2g बीइंग कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो जब टाइम 0 था, दैट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, जब जस्ट शुरू हुआ उस समय h वेरिएबल है ना, तो हम लोग लिमिट्स किसका बैठा रहे हैं, h का, दिस h। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें बॉटम गेट को, जब टाइम इक्वल टू 0 था तब तक तो लिक्विड मेटल आया ही नहीं, तो क्या है h कितना है 0, और टाइम पूरा, टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फिलिंग पूरा ले लिया जाए, तब हाइट कितना हो जाएगा, पूरा भर के दिस एंटायर मोल्ड कैविटी विल बी फिल्ड अप टिल अप टू विच पॉइंट, अप टू ए हाइट ऑफ h विच इज द हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी hm, है ना। तो वही hm को हम लोगों ने h लिखा है। तो एट इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0 there was nothing inside the mold cavity and the height of liquid metal in the mold cavity was 0. After certain time, after the time of TF, है ना, तो mold cavity has been completely filled because this is the time of filling. So after this much time, this much is the height of the liquid, like how much liquid metal in the mold cavity. इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे।
अब रूट अंडर 2g बाहर आ गया, एच टी माइनस एच इसका क्या है, डिनोमिनेटर में था, दिस वाज समथिंग लाइक दिस, तो टू द पावर माइनस हाफ ऊपर जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड इंटीग्रेशन आई हैव टॉट यू ऑलरेडी इन द गूगल क्लासरूम, आपको मालूम होगा माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात देखना है, वेरिएबल का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए -1 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन में, अगर डिफ्रेंशिएशन रहता है तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि 1 माइनस हाफ इज हाफ, इंटू -1 फिर से माइनस हाफ, बाकी एज इट इज़ यहाँ पे है ही। और यहाँ देखो माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ एंड वी आर गेटिंग एच टी माइनस एच फ्रॉम 0 टू h, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज h, क्लियर है। अब क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस हाफ था ना, दिस वाज माइनस हाफ, तो इसको अगर मैं पूरा कॉपी को खोल दूँ फॉर योर कन्वीनियंस, इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हाफ है, दैट इज ये माइनस ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड हाफ का जो 2 है दैट विल गो अप इन द न्यूमरेटर, सो -2, एंड एच टी माइनस एच का हाफ है, तो उस पर h इज द वेरिएबल, एच टी इज कॉन्स्टेंट, ये ध्यान हमेशा रखना है, एच टी ए जी ए एम आर कॉन्स्टेंट, तो एच टी अपर लिमिट क्या लगाएंगे, कैपिटल एच, दैट इज द हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी, कैपिटल एच टी माइनस कैपिटल एच का पावर हाफ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो h का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ एच टी, तो एच टी का हाफ बच गया यहाँ पे, तो माइनस साइन को अंदर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम एच टी का पावर हाफ इज रूट अंडर एच टी, एंड एच टी माइनस एच जो है उधर चला जाएगा, दैट बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, सो 2am डिवाइडेड बाय 2am डिवाइडेड बाय ए जी इंटू रूट अंडर 2g, और ब्रैकेट में क्या है हम लोग का न्यूमरेटर में, एच टी रूट अंडर एच टी माइनस रूट अंडर एच टी माइनस एच, दिस इज द टाइम ऑफ फिलिंग इन बॉटम गेट, क्लियर है। एनी डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप वीडियो जो पे मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवर्स करके भी देखोगे, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझना, डेरिवेशन अगर समझना है तो, अगर आप इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। So let's move ahead. There was one question in GATE 2017. It came in Set 1. It was for 2 marks. A sprue in a sand mold has a top dia of 20 mm, यानी कि टॉप डाया यहाँ का 20 mm दिया हुआ है, एंड a height of, स्प्रू का हाइट दिया हुआ है आपको 200 mm, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल, है ना, मोल्टेन मेटल, यहाँ पर मेटल छूट गया है, वेलोसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल एट द एंट्री ऑफ द स्प्रू, जहाँ से स्प्रू में एंट्री हो रहा है, ठीक है, ये स्प्रू है तो इसका एंट्री यहाँ हो रहा है और ये एग्जिट होगा, ऑन एग्जिट पे हम लोग का गेट होता है, तो एज्यूम दैट इज अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 दिया हुआ है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा लेने के एज्यूम करने के लिए, दैट ओनली यू विल एज्यूम एंड दैट विल ओनली यू विल कंसिडर व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, यू कैन नॉट टेक 9.81, जो आपको बोला है वही यूज करें आप, एंड नेग्लेक्ट ऑल लॉसेस। If the mold is well ventilated and the velocity of the molten metal the velocity of the molten metal at the bottom of the sprue is dash meter per second। पहला बात तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि आपका यूनिट किस में पूछा है। Always and always pay attention to the question and everything that has been asked or given in the question. It should not be something like आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपने ओवर रूल करके आपने अपना कांस्टेंट यूज कर लिया, दैट इज 9.81 यूज कर लिया, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द आंसर माइट कम डिफरेंट फॉर यू, राइट, इवन बाय दैट देयर माइट बी सम चेंजेस इन द डेसिमल पार्ट, बट इट विल वेरी, सो जो आपको दिया हुआ रहेगा उस पर ध्यान देना, एंड ऑल्सो सी द यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन व्हाट यूनिट्स यू हैव बीन आस्क्ड टू आंसर, आपको आंसर पूछना है, बोला गया है देने के लिए, एंड द आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स सी, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लें।
तो टॉप डाया आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ का डायमीटर आपको 20 mm दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ द स्प्रू यानी कि HS आपको दिया हुआ है 200 mm, ठीक है। एंड वेलोसिटी इन दिस केस, velocity at this opening, or that is the entry to the sprue, has been given as 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, बाकी सब कुछ आपका mm में है, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मेंशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। तो Vg कितना होगा या V2 कितना होगा, दैट इज द एंट्री वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू, एंड द बॉटम ऑफ द स्प्रू इज गेट, यानी कि Vg निकालना है। तो हम लोगों ने Vg के बारे में एक चीज़ पढ़ा था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों ने एक्सप्लेन Vg निकाला था कितना, वी हैव फाउंड रूट अंडर 2g टॉप गेट में। पहला बात यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे गेट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है, देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द गेट है। तो सिंस देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द गेट, आप क्या लोगे, टॉप गेट ले लोगे ना, तो टॉप गेट लोगे। इन दैट केस Vg हम लोगों ने निकाला था रूट अंडर 2GHT, वेयर HT वाज द टोटल हाइट फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टिल द एंड ऑफ द स्प्रू। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरा लिया था लिक्विड मेटल जहाँ तक है पोरिंग बेसिन में, वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने लिया है HT। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला बात आता है ये HC और ये है HS। तो हाइट ऑफ द स्प्रू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, एज्यूम, एंड द हाइट इज 200 mm, यानी कि HS दिया हुआ है हम लोगों को 200 mm, और यहाँ पे वेलोसिटी आपको दिया हुआ है एट दिस पॉइंट 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखो इन दिस केस ये पॉइंट पे दिया हुआ है, और ये पॉइंट का वेलोसिटी आप नेग्लिजिबल होते ही आपको मालूम है ना। सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 1 ले लो, ये 2 ले लो, और ये 3 ले लो। तो आपको वेलोसिटी ऑफ 3 निकालना है, दैट इज Vg, ये आपको नहीं पता है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग को HS दिया हुआ है, HC नहीं पता है। सो विल हैव टू फाइंड आउट HC फर्स्ट, देन ओनली वी कैन यूज HT एज HS प्लस HC। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज गिवन टू यू सो दैट यू कैन फाइंड आउट HC, और 1 और 2 के बीच में लगा दो तो बर्नौलीज इक्वेशन, आपको ये चीज़ ध्यान में रहने से अपने आप मालूम चल जाएगा। सो इन दोनों के बीच में लगा दो तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1, इसके बीच में लगा रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 2 को आप डेटम मान लो, तो दिस मच इसका हाइट कितना हो जाएगा HC, है ना। फ्रॉम दिस पॉइंट द डेटम दैट इज द सेक्शन 1 इज एट अ हाइट ऑफ हाउ मच HC, तो Z1 का वैल्यू HC आएगा, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। तो ये दोनों पार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंसिडर किया जाता है, तो ख़त्म है। V1 इज़ वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू V2, ये भी ख़त्म। Z2 इज़ 0 बिकॉज डेटम को यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग, एंड Z1 विल बी इक्वल टू HC। सो बच जाएगा क्या, 2GHC रूट अंडर विल बिकम एज V2। यहाँ का वेलोसिटी मिल जाएगा, एंड दिस वेलोसिटी इज गिवन एज 0.5 मीटर पर सेकेंड इन द क्वेश्चन। तो आपके पास 0.5 ये दिया ही हुआ है, रूट अंडर 2GHC हैज़ बिन, यू हैव डिराइव दिस रिलेशन। तो आपके पास आराम से HC का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से यू कैन टेक आउट द वैल्यूज ऑफ HC, एंड दैट व्हाट आई हैव डन। स्टेप 1, Vs that is the velocity at the entry to the sprue is equal to root under 2GHC, and Vs was 0.5 as mentioned in the question। आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया, HC का वैल्यू लिया, एंड HC you have found out as in meter as 0.0127 मीटर। HC का वैल्यू आपके पास आ गया, क्लियर है। Step 2, since you have found out HC and HS has been given, so total height will be how much, HS plus HC। तो हम लोग को सब कुछ मीटर, आंसर मीटर में निकालना है, तो HS का वैल्यू जो 200 mm दिया हुआ है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ध्यान देना। डन। नाउ क्या होगा यहाँ पे, HT इज गिवन एज 0.2 प्लस 0.0127 मीटर, तो हम लोग के पास 0.2127 मीटर आ गया। यू कैन डू दिस स्मॉल कैलकुलेशन, दिस इज नॉट एट ऑल टफ। HT का वैल्यू हम लोगों ने फिर से निकाल लिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ HT इन दिस इक्वेशन, वेयर Vg दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2GHT जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज 2.042 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर, राइट। सो यहाँ पे आपको वैल्यू आंसर मिल जाएगा 2.042, मैंने सॉल्व करने के बाद निकाला है, ठीक है। तो दिस इज द
टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट माइट अपीयर इन द क्वेश्चन। ये तो हो गया आपको वेलोसिटी निकालने का। अब आप टाइम ऑफ फिलिंग पे कैसे आएंगे, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द गेटिंग सिस्टम, राइट। तो गेटिंग सिस्टम पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, अब आपको टाइम ऑफ फिलिंग पे अभी आप सोच रहे होगे कि टाइम ऑफ फिलिंग पे कैसा क्वेश्चन आता होगा। यस, डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चंस ऑन टाइम ऑफ फिलिंग द मोल्ड कैविटी, वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ मोल्ड, क्वेश्चन 2005, 2 marks. The mold has down sprue whose length is 20 centimeter and cross sectional area at the base of the down sprue, यानी कि गेट का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मोल्ड हैज डाउन स्प्रू हुज लेंथ, यहाँ पे लेंथ की हाइट के हिसाब से नहीं बोला है, यहाँ पे लेंथ के हिसाब से बोला है। सो लेंथ ऑफ द स्प्रू हैज बीन गिवन एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस ऑफ द डाउन स्प्रू इज 1 centimeter square. So down sprue feeds a horizontal runner leading into the mold cavity of volume 1000 centimeter cube. The time required to fill the mold cavity will be, पहला बात आपको जब सॉल्यूशन करोगे तो पहला बात आप देखोगे कि ये टाइप ऑफ गेटिंग क्या है। तो देयर इज नथिंग मेंशन्ड हियर अबाउट टाइप ऑफ गेटिंग, सो बाय डिफॉल्ट यू विल टेक इट एज टॉप गेट, अपने आप ले लोगे, है ना। एंड व्हेन यू कंसीडर दिस टॉप गेट, अपने से बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका सिर्फ स्प्रू का लेंथ दिया हुआ है और आपके पास हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इन द पोरिंग बेसिन नहीं मेंशन किया हुआ है एंड देयर इज नथिंग एज सच इन द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड HC। पिछले क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ द स्प्रू दिया हुआ था, दैट इज 0.5 दिया हुआ था, बट इन दिस केस देयर इज नथिंग मेंशन्ड, सो देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ HC, तो यू विल कंसिडर HT एज दिस वन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका स्प्रू ऐसे दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल रनर है और उसके बाद जाके आपको क्या मिल रहा है, मोल्ड कैविटी मिल रहा है और यहाँ पे एक राइजर लगा हुआ है, दैट इज इफ यू टेक इट ऑल्सो नॉट डू नॉट टेक इट, नॉट अ प्रॉब्लम, टॉप गेट कंसिडर कर रहे हैं। एंड हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी, सो वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी हैज बीन गिवन टू यू एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। एंड एट द बेस ऑफ द डाउन स्प्रू, यानी कि जनरली क्या होता है, एक रनर जाएगा और रनर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, सो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस एरिया ऑफ द इन गेट और द एरिया ऑफ द गेट हैज बीन गिवन टू यू एज 1 centimeter square, क्लियर। Now this part is given to you as 20 centimeter. There is nothing mentioned about what HC के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो therefore this will serve as HT, ठीक है। तो in case of top gate we know time of filling is equal to Vm is equal to divided by Ag into Vg होता है, and Vg is nothing but we know as Vg as root under 2GHT, थोड़ा देर पहले डिराइव किया। सो 2GHT आपके पास यहाँ पे आ गया है, क्लियर। नाउ से यहाँ पे Vm सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है, HT में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सिर्फ G का वैल्यू जो है दैट इज इन लाइक 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही है। तो सबसे अच्छा रहेगा सिर्फ एक को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, है ना। सो वॉल्यूम आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है एंड एरिया ऑफ जी दैट इज अ गेट आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सी 1 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81, और 9.81 को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 9.81 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं, दिस विल बिकम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम सेकंड में है आपके पास और आपको टाइम निकालना है सेकंड में ही, देखो सेकंड में ही पूछा है, 4 ऑप्शंस, इंटू 100 इंटू HT इज गिवन एज 20, यही है। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस पार्ट definitely we can find it out very easily. क्या होगा, you have to pay attention here. आपको ये निकालना है वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 तो है, तो देयर इज नथिंग नॉट रिक्वायर्ड टू राइट 1, रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू 100 981 लिख सकते हो डायरेक्ट,
into 20, your answer is getting 5.048. तो इसको राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस आप क्या करें 5.05, जो आपका ऑप्शन में है 5.05 सेकेंड्स. तो दिस इज द वे दे आस्क टाइम ऑफ फिलिंग. ऑलराइट, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. देयर इज नथिंग एट ऑल इन दिस फ्रॉम दिस पार्ट टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट. आपको क्लियर होना चाहिए. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे गेट एग्जामिनेशन में, और गेटिंग सिस्टम से जितना क्वेश्चन आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा सॉलिडिफिकेशन टाइम पे. So that solidification time has to be paid attention to. In the next lecture we'll talk about the solidification time. All right, so let's see. A casting of size this much is given to you. That is the volume of the casting is given. Was filled by a top gate with manometric height in pouring basin to be this much. यानी कि HT का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. ठीक है. कंपेयर द टाइम टू फिल द कास्टिंग बाय डिफरेंट गेट्स, यानी कि टॉप गेट और बॉटम गेट को आपको कंसिडर करने के लिए बोला है. ठीक है. तो आपको 200 इंटू 200 दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना. दिस इज व्हाट इट इज. LBH के फॉर्म में दिया हुआ है. तो हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 200 इंटू 200 into 25, and height of the mold cavity has been given as, इसमें से ये L है, ये B है, ये H है, तो हाइट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. ठीक है. फिल्ड बाय ए टॉप गेट विथ मैनोमेट्रिक हाइट, यानी कि टोटल हाइट आपको दिया हुआ है टिल द गेट वाज 45 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो आप टॉप गेट और बॉटम गेट के कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, एंड द एरिया ऑफ द गेट हैज़ बिन गिवन टू यू, AG हैज़ बिन गिवन टू यू एज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इफ़ आई राइट डाउन, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है टॉप गेट और बॉटम गेट, तो आई विल ड्रॉ टू कॉलम्स. सो टॉप गेट हियर एंड हियर विल राइट बॉटम गेट. तो टॉप गेट और बॉटम गेट में आपको क्या करना है, टॉप गेट में टाइम ऑफ फिलिंग कितना होता है, वॉल्यूम बाय AG इंटू √2GHT. दैट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल थ्रू द गेट. ठीक है. तो यहाँ पे VM आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर क्यूब में हो. एरिया भी आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सिर्फ G को आप कन्वर्ट कर लो. एंड हाइट HT इज 45 सेंटीमीटर. तो आपको ध्यान देना, ये HT कंफ्यूज नहीं करना, ये और ये में अलग अलग है. दिस इज अबाउट द मोल्ड कैविटी, दिस इज अबाउट द हाइट अबव द गेट. ठीक है. सो ये टोटल हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो VM आपको लिख सकते हो 22 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 250, 50 इंटू 2 इज 100. तो 2 0 और 4 0, यू आर गेटिंग 10 to the power 6. And here AG is how much, 15 इंटू, G को 9.81 है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन सेंटीमीटर. तो 2 इंटू 981 इंटू HT का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45. तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो TF का कितना होगा, है ना. उसी तरीके से बॉटम गेट में जाना है आपको. तो टाइम ऑफ फिलिंग यहाँ पे TF, T अगर लिखो तो टॉप गेट, TFB लिखो तो बॉटम गेट. सो वी हैव ट्वाइस AM, है ना, ट्वाइस AM डिवाइडेड बाय क्या है, AG इंटू √2G, और न्यूमरेटर में क्या था, √HT माइनस √HT माइनस H. सब कुछ का वैल्यू आपको दिया हुआ है. AM आपको है 2 इंटू 10 to the power 4, 2 इंटू 2 है ही, इंटू 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 10 to the power 4. AM तो यही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो AM कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द मोल्ड कैविटी 200 इंटू 200 इट इज 4 इंटू 10 to the power 4. AG is nothing but 15 into √2 into 9.81, 2 into 981 into HT माइनस इतना करना है. तो √HT कितना, √HT इज 45 माइनस ये कितना 45 माइनस 25, HT माइनस H कर रहे हैं तो 45 माइनस 25 इज 20. ये कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ दिस कास्टिंग आपका, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ मोल्ड, जो है वो आपको
आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर. ऑलराइट, so definitely there is nothing to be worried about in this part. According to the calculations I have done in my rough book, it is 224.36 second and here it is 269.23 second. तो आप देखो फॉर फिलिंग ऑफ द सेम मोल्ड कैविटी को अगर आप फुल कर रहे हो विद द सेम हाइट, है ना, विद द सेम एरिया ऑफ द गेट, तो कंपैरिजन में आपको मालूम चलता है कि टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी यूजिंग टॉप गेट इज लेस देन time of filling of the mold cavity, same mold cavity, the bottom gate, keeping all parameters constant. So this is it. Thank you so much. In the next lecture we'll be talking about the solidification time, which is really a very important part for gate examination, very important. So stay in touch and keep revising, solve different numericals from the previous years. Also you can solve a lot of numericals from the internet also. It is lot of questions are available, so definitely you will be able to solve these questions from the gating system now onwards. I have this full confidence in you guys, so let's hope. And in the next lecture I will see you with the topic of solidification time. So thank you so much. Stay in touch.